Hello everyone, very good morning to all of you, and I'm very happy and excited to see all of you here because I think the information which I'm going to give is really important and is going to help all of you. So, first of all, very good morning, Manishji. So, here I am going to share a lot of information with all of you, which will add a lot of difference, and it is very, very essential and important in today's scenario in COVID-19, so that we all can be safe, healthy, and fit, and can take care of ourselves and our loved ones. So, very good morning, everybody, and I'm very happy and very happy to connect with all of you and giving you this information. And I think nutrition is something which is very, very vast, and it takes a lot of time to understand things because it depends on practice also, how you practice and control yourself when it comes to eating a lot of stuff. सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. माई नेम इज़ रिचा दीक्षित. आई एम अ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल कोच. सो इट्स बीन more than 5 years I'm in this industry, and I never thought that I would do something in nutrition field, but there was a time where I felt that it's high time now and we all need to be really fit and healthy. And I had realized this when I was in 11th. I'm so sorry for the notification. So I had realized this when I was in 11th class and I had lungs infection and I was facing a lot of health issues. I had BP low problem. I had hemoglobin issue. So I was taking a lot of medicines, and because of steroids, I was gaining weight. And everybody was suggesting, even doctors, that you need to reduce weight because obesity के भी बहुत सारे problems होते हैं और बहुत सारे health issues आप attract करते हैं. So that time I decided to go for something, and why I shouldn't learn something where I can help myself and my family. So I started learning about nutrition, and simultaneously I was helping people. So just to show you my result, I was this. So it's like 5 years ago I was this, and around more than I think 65 kg, and this is my current status. So my weight is 56 now, and I'm maintaining for last 5 years. So if we talk about कोविड 19 में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विच इज आर इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम. ओके, इम्यूनिटी कैसे काम करता है एंड व्हाट इज इम्यून सिस्टम. Basically, so I have prepared something for all of you so that I don't miss out on anything, and it is really important to cover each and every point. So basically, immune system, it's work like our body defense system to fight against diseases, bacteria, virus, and foreign matters. So basically, when anything enters, so our immune system works as a defense system or defense mechanism to protect our body. And once the foreign invaders are detected, our immune system is activated to fight against your bacteria and external things which are not good and healthy for our body. So it starts fighting. Now there are 5 pillars of health which I'm going to talk about. Please listen it very carefully, guys, because अगर इसमें से एक भी चीज मिस होती है, so we might fail, or maybe in terms of we might attract a lot of health issues, and then we tend to think कि what went wrong. So these are the 5 pillars of health जो हर एक चीज important होती है. The most important thing is your nutrition diet. Okay, nutrition diet के बाद आता है physical movement, which is exercise. Then it comes your stress management. Then fourth is your relaxation, which is sleep. And then again, last but not the least, socialization. These are the 5 pillars of health. अगर एक भी चीज मिसिंग होती है तो आपका जो पूरा ओवरऑल हेल्थ होता है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा. बिकॉज अगर 5 उंगलियां हैं, अगर एक भी कम होती है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है फंक्शन करने में.
Now the point is, have you ever thought how obese we are? Because obesity is directly related to your immune system, and immunity is directly related to or connected to COVID-19. So if we see, I am going to talk about the facts, and it came in Times of India. If you want, I can share the source. So I am going to talk about the women and men both. So if you see in central Delhi, so 35% of women and 17% of men are obese. Ahmedabad, 34% women and 29.4% men. Mumbai, 34% women and 37% men. Bangalore, 33.4% and 27.4% men. Chennai, 33.6 and 31.3% men. Visakhapatnam, 41.6% women and 40.2% men. Hyderabad, 48.7% women and 33.1% men. These are the people who are overweight and facing obesity problem. If you see in Telangana, so there are two things. Either you are, so there are actually three things. Either you are underweight, or you are overweight, or you are on your ideal weight. So Telangana में जो underweight है 23% of women and 21% men, and overweight 28% women and 24% men. तो आपको ये सबसे पहले ये चेक करना है कि are you perfect, like are you on your ideal weight? If you are underweight or you are overweight, you really need to take care of your body, friends, because ये अगर हम इन्फेक्टेड होते हैं या हमें कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स आते हैं, इट डिपेंड्स कि हाउ फिट वी आर, और उसी के बेसिस पे हमारी रिकवरी होती है. तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है वेदर यू आर अंडरवेट, ओवरवेट और यू आर ऑन योर आइडल वेट. नाउ इफ यू सी दी हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, so number of overweight people and obesity is increasing day by day, and by 2014 33%, actually 32.8% of urban women are going to be overweight, and 37% urban men will be overweight. By 2040 I'm talking about 33% urban Indians have high blood pressure, and about 40 million Indians have type 2 diabetes, more have impaired glucose tolerance. Okay, so the number of people who are going to hospital, the number of people who are dying because of COVID-19, the number of people who are recovering fast, तो उसके पीछे भी एक रिसर्च नहीं बोलूंगी, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे लोग ठीक होके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग की डेथ भी हो रही है, और बहुत सारे लोग रिकवरी नहीं कर पा रहे. दे आर स्टिल ऑन बेड एंड दे आर स्टिल टेक ऑन मेडिकेशन. सो मैं ये आपको बता रही हूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था. ओबीज पीपल, मेन एट हाई डेथ रिस्क बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज जैसा मैंने बताया अभी, ओबेसिटी इज अ हाई रिस्क ऑफ हैविंग दिस इन्फेक्शन और मे बी रिकवरिंग क्वाइट लेट. सो अगर आप ओबीज हैं तो प्लीज यू नीड टू रियली थिंक अबाउट योर ओबेसिटी. The coronavirus outbreaks has affected millions of people around the world, that we all know. A study in the UK has found that obese people, and especially men, are at high risk of death due to coronavirus infection. And the study mentioned that these findings were not found in China, probably because the rate of obesity in China is much lower than in UK. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर BMI. सो जो भी लोग ओबीज होते हैं, जिनका ओवरवेट ज़्यादा, जो ओवरवेट होते हैं, उनका BMI हमेशा ज़्यादा होता है. व्हाट इज BMI? BMI इज बॉडी मास इंडेक्स. इट इज़ अ रेशियो ऑफ योर हाइट एंड वेट, एंड योर वेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स: योर बॉडी फैट, मसल मास, बोन्स एंड फ्लूइड. नाउ यू नीड टू सी 2 पैरामीटर्स. वन इज योर बॉडी फैट एंड वन इज योर मसल मास. तो आपका जो टोटल बॉडी वेट होता है, उसमें से अगर आप बॉडी फैट को माइनस करेंगे, वॉट एवर द रिमेनिंग इज, दैट इज योर लीन मसल मास. तो वो आपको देखना है. और आपका जब आप लीन मसल मास डेवलप करते हैं, दैट विल टॉक अबाउट इन लाइक, अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज लीन मसल मास, उसके बारे में बात करेंगे. अगर आप वो इंक्रीज करते हैं, ऑटोमेटिकली योर बॉडी फैट गोज डाउन एंड योर BMI विल फॉल इन प्लेस. एंड वंस योर BMI इज ओके, you are quite relaxed because you are quite healthy in terms of your body parameters. Also जिन लोग का
जो लोग ओबीज हैं या जिनका बीएमआई ज़्यादा है, दोज पीपल आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. सो उनको भी एक सोचने की ज़रूरत है कि उनको डेफिनेटली उनको अटैक्स ज़्यादा आ सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं. तो अगर उनका बीएमआई ज़्यादा है तो अगेन यू नीड टू वर्क ऑन ए बीएमआई एंड ट्राई टू डिक्रीज इट. अभी अगेन थोड़ा सा इट इज़ इन, if you need to understand in detail, you can get in touch with me later on, because BMI, BMR, body fat, body age, muscle mass, how it works. So it's a proper, you need to understand a lot of things in terms of getting your parameters on right place. Now एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप सबने नोटिस करी होगी कि लॉट मेनी पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, एंड देयर वाज अ टाइम वेयर वी यूज्ड टू, और मे बी वी यूज्ड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग फ्रॉम होम एंड ऑफिस. एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी, इन 1990s पहले के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिलता था, न्यूट्रिशन का फूड मिलता था, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, एडल्ट्रेशन नहीं होता था, और हमारा फिजिकल वर्क बहुत इन्वॉल्व था. तो हम लोग बिना एक्सरसाइज के भी यूज टू बी क्वाइट फिट एंड हेल्दी. एंड अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे, जब हम ऑफिस में काम करते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी सिट स्ट्रेट एंड आवर माइंड एंड बॉडी इज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन अ वर्क, एंड वी डोंट ईट ऑल्सो मच इन ऑफिस बिकॉज फूड की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती है, जो टिफिन लेके जाते हैं उतना ही खाते हैं. बट इफ़ यू सी व्हेन वी आर एट होम एंड वर्किंग फ्रॉम होम, तो घर में वेराइटी ऑफ फूड्स आर अवेलेबल. आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ बनता रहता है घर में, लंच स्नैक्स. और अभी टाइम हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग घर पे ऐसे स्नैक्स बनाते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ जंक फूड एंड नॉन हेल्दी फैट और मे बी अनहेल्दी फैट. तो वो हम लोग यूज़ करते हैं, सो अगर आप देखेंगे तो घर पे अगर आप हैं तो आप काम कर रहे हैं, यू आर सिटिंग ऑन काउच एंड be relaxed and in your comfort zone, and you are eating every now and then, and water intake काफ़ी कम हो जाता है हमारा, and exercise नहीं होती है because sometime when you are at home and you are doing work from home, तो आप सोचते हैं कि थोड़ा lethargic भी फील करते हैं, so you don't actually exercise but you are eating a lot in your comfort zone. तो again वो भी आपका weight excess करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो उधर से भी थोड़ा सा शिफ्ट होना है. दिस इज द रियलिटी बाय द वे जो हम लोग कर रहे हैं. एंड आई रियली थिंक दैट ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली वर्कर्स, पीपल हु आर वर्किंग, वी ऑल नीड टू बी रियली हेल्दी एंड एक्टिव, बिकॉज वो हमारी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी डिपेंड करता है. और अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. वी फील डिफरेंट काइंड ऑफ I would say different happiness or maybe excitement ही अलग होता है काम करने का when you are active and healthy. So आपको एक चीज़ और सोचनी है कि when you wake up, how do you start your day? आपका दिन की शुरुआत कैसे होती है? आप मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप फ़ोन देखते हो, सबसे पहले आप कोई मेडिटेशन का म्यूज़िक लगाते हो, और यू गो फॉर मेडिटेशन एक्चुअली, और यू डू सम चैंटिंग. व्हाट यू डू आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग? आप सबसे पहला आपका जो फूड होता है या सबसे पहला जो आपका ड्रिंक होता है वो आप क्या लेते हैं? सो यू रियली नीड टू थिंक हाउ यू स्टार्ट योर डे, बिकॉज वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर डे यू विल चैनलाइज थिंग्स स्लोली एंड स्टेडली. मे बी एकदम से नहीं होगा, बट फिर भी आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर गोइंग रॉन्ग and why you are attracting lot of health issues, why your immunity is going down. because immunity के बारे में मैं बहुत सारी बात करने वाली हूँ आज. इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है आपके कोविड-19 से. अगर आपने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर ली, हम सब कोविड-19 को हरा सकते हैं. ओके, आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जो मेंटल वर्क है वो बहुत इंक्रीज हो गया है. इफ़ यू सी नॉट ओनली योर ऑफिस वर्क, बट अगर आप वैसे भी देखेंगे, लाइक इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू हैव किड्स, फिनेंशियली स्ट्रेस, अगर किसी रिलेशनशिप आपका कोई ठीक नहीं चल रहा है वो स्ट्रेस अलग, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, एंड हेल्थ इश्यूज अगर आपको है तो उसका स्ट्रेस अलग. तो बहुत सारे मेंटल इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं, जो स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को हेल्थ को एक्चुअली अफेक्ट कर रहे हैं. और ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी से निकालना, जो भी एक्सेस मात्रा में जा रही हैं और जो नहीं जानी चाहिए, वो डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वाई द ऑप्टिमल न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट शुड बी इन बैलेंस. और जब भी ये डिसबैलेंस होता है
तो हमारी हेल्थ भी ऊपर नीचे जाती है। और जब हमारी हेल्थ ऊपर नीचे जाती है हम तब भी इसका ख्याल नहीं रखते हैं, फिर हमें हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, हम लोग डिजीजेस अट्रैक्ट करने लगते हैं, एंड देन वी टेंड टू थिंक वी नीड टू रियली सी अ डॉक्टर, एंड देन हमारा मेडिकेशन स्टार्ट होता है, एंड देन वी आर कंप्लीट ऑन मेडिकेशन, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, कैसे कौन सी मेडिसिन लेके, एंड देन सम टाइम ऐसी आपको इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज कि आप पूरी जिंदगी भर आप उसकी मेडिसिन खाते रहते हैं, विच इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिजीज, जो एक्चुअल में डिजीज नहीं होती हैं, बट वो आप अट्रैक्ट करते हैं और अपने आप को उनको एक्चुअली बुलाते हैं प्रॉब्लम को। सो वाई यू नीड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। हमारी जो बॉडी में एक्सेस मात्रा में जो जा रहा है, दैट इज गोइंग, इफ यू सी सॉल्ट, शुगर, अल्कोहल, टबैको, पोल्यूशन, एयर एंड वाटर, देन पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ये सारी चीजें एक्सेस मात्रा में जा रही हैं। एंड इफ यू सी डिफिशियंसी जो बॉडी में हो रही है, फर्स्ट इज प्रोटीन। नाउ I don't know whether how many people are there and how many people are non-vegetarian and pure vegetarian. If you see, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम enough प्रोटीन ले रहे हैं and we are having lot of non-veg like chicken, mutton, fish, ये सब ले रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि हर एक चीज़ का अपना बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग चिकन, ओके, चिकन में भी प्रोटीन होता है और दही में भी प्रोटीन होता है, लेकिन दोनों के बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफिशियंसी आ रही है हमारे पास, एक तो वो प्रोटीन की आ रही है, बट प्रोटीन में भी एक प्रोटीन की आ रही है और एक वेजिटेबल प्रोटीन की आ रही है। सो आपको पूरा कॉम्बिनेशन वॉट एवर is available in the marketplace, okay, in terms of food and nutrients part, तो आपको वो कॉम्बिनेशन में लेना है। आप एक भी चीज़ कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जो आपका बैलेंस होता है फूड का, वो एक्यूरेट मात्रा में जाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दही में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, चिकन में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो दोनों चीज़ें आपको लेनी है, और वो आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे आप अपना बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट बना सकते हैं, ओके। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, water and amino acids, okay, so these are the nutrients which are in deficiency. normally हम लोग उसका इंटेक एक्यूरेट मात्रा में नहीं करते हैं, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, और जो हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए वो हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उसका एक्सेस होता जा रहा है। हमारी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट कैसे मिलता है? So there is two things, major things. One is macronutrient, one is micronutrient. Macronutrient में आपका हेल्दी फैट्स आता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आता है, एंड प्रोटीन आता है। प्रोटीन आपको 30% चाहिए, फैट्स, हेल्दी फैट्स आपको 30% चाहिए, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको 40% चाहिए, ओके। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स, लाइक अगर आप फैट्स में देखेंगे तो यू नीड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, देन यू नीड फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वाटर फॉर हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप, ओके, फॉर रिलैक्सेशन। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं डेली बेसिस पे आपकी बॉडी में एक्यूरेट मात्रा में जाना। हमारा जो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे हेल्प करता है, ओके। सो डाइटरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, लाइक फाइबर, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स नोटिफिकेशन के लिए। सो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं, डाइटरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एग्जाम्पल प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड विटामिन स्पेशली ए, बी, सी एंड डी, ये आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी हेल्प करते हैं। स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ओके। सो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत सपोर्ट करते हैं, और आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इनिशियली इन द बिगनिंग, उसको सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। तो जितना ज़्यादा आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज़्यादा, एक तो अगर आप कोई भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपको फ्लू हो रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण एक तो आपकी बॉडी पे डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। अगर वो लो है, डेफिनेटली आपकी कंडीशन सिवियर होती जाती है, और एक स्टेज के बाद ऐसा होता है दैट यू रियली नीड मेडिकेशन विच योर बॉडी कैन नॉट हैंडल ऑन योर ओन, ओके। सो डेफिनेटली योर गुड न्यूट्रिशन एंड योर हेल्दी लाइफस्टाइल गिव्स यू अ कंप्लीट हेल्दी बॉडी एंड अ वेरी हेल्दी इम्यून सिस्टम, ओके। There are people who are watching. So yes, at the end of the session I would like to take your question if you have any query, or maybe if you want to ask anything, तो हम लोग एंड में बात करते हैं। नाउ 70% ऑफ योर इम्यून सिस्टम का जो हेल्थ रहता है, दैट इज लोकेटेड नियर बाय योर गट हेल्थ, ओके। सो अगर आपका डाइजेशन स्ट्रांग है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डाइजेशन स्ट्रांग होने की वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आपकी
also the balanced diet of nutrients and vitamins gives you a very very good immune system. Now, how nutrition impacts the body immune system? First, I would like to talk about the protein. What is protein? It is the first solid component of your body, and it's a part of body composition, and it helps support lean muscle mass, which can support immunity system. Now, how protein works? First of all, protein is the macronutrients जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, and protein is a vital to your healthy diet because it maintains and build your ये body building blocks का काम करता है, and protein also helps to build and maintain your lean muscle mass, gives you energy and immunity को बहुत support करता है because protein जो है आपका जो इम्यूनिटी की और इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं. सो व्हाई प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट? प्रोटीन गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, प्रोटीन गिव्स यू एनर्जी, protein maintain and build your muscle mass, and protein also help for body growth and development. How much protein is important? That depends on your gender, your age, and what kind of activity you're doing. So example, if you are focusing on pound, so you need 1 gram of protein per pound, and if you are focusing on kg, you need 2 gram of protein, okay, per kg. So that is the accurate thing which you need to consume, because कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोटीन, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और हम प्रोटीन ज़्यादा इंटेक में ले रहे हैं, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऑर्गन को भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है. तो प्रोटीन आप एक्सेस मात्रा में मत लीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ही कंप्लेंट होता है कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो गया है, या मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या गट हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है. कोई भी चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ एक्सेस लेने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी. तो अगर आप राइट गाइडेंस के थ्रू लेंगे या राइट मात्रा में लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रोटीन के जो फायदे होते हैं वो आपको सारे बेनिफिट आपको बॉडी में मिलेंगे, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप राइट न्यूट्रिशन लें और एक्सरसाइज करें. कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं बट फिर भी प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा बढ़ाते हैं, जस्ट दे हैव हर्ड फ्रॉम समवेयर दैट इट विल हेल्प टू इंक्रीज देयर लीन मसल मास, सो दे टेंड टू हैव लॉट ऑफ प्रोटीन इंटेक. ओके, तो वैसा बिल्कुल भी मत कीजिए, जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना ही लीजिए. तो अगर 1 kg per pound and 1 gram for per pound and 2 gram of for per kg. Okay, so this is the ideal thing. कार्बोहाइड्रेट अगर आप सो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट वर्क्स लाइक अ फ्यूल, बिकॉज ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का काम करता है. अगेन इट सेटिस्फाइज योर हंगर, इट गिव्स यू एनर्जी, और it also provide fiber, phytonutrients, it also provides phytonutrients. Now phytonutrients में फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें विटामिन ए एंड विटामिन सी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है. अगेन दैट हेल्प्स फॉर योर इम्यूनिटी सिस्टम. कार्बोहाइड्रेट आपको किस किस में मिलेगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स लाइक होल ग्रेन्स, and beans and dairy products. So all dairy products में you can have good amount of complex carbohydrate. What is fat and immunity? Now फैट में भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें फैट्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या मैं तो ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती. ये एक्चुअली मिथ है, बिकॉज हेल्दी फैट्स बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर योर जॉइंट्स एंड मोबिलिटी एंड to control your overall health. So fats में जो omega 3 fatty acids such as DHA and EPA are very essential and healthy. Types of fat, अगर आप like you can have, if you want to go for healthy fats, you can go for chia seeds, flax seeds, and non-veg में अगर आप देखेंगे you can go for eggs, chicken, mutton. But again I would recommend you go for you can go for chia seeds and eggs and फ्लेक्स सीड्स. सो इसमें सब में आलमंड्स, इन सब में हेल्दी फैट्स होता है. सो यू कैन गो फॉर ग्राउंडनट. तो इन चीज़ों से आप हेल्दी फैट्स ले सकते हैं. फैट्स कितना लेना चाहिए? जैसा मैंने बताया था 30% फैट इज रिक्वायर्ड, विच इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6. हेल्दी फैट्स हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. ऑल्सो
it is very important for functioning of your vision, mind and brain. So अगर आप कॉम्बिनेशन में आप ऑलरेडी टोल्ड लाइक अगर आप ओट्स वगैरह में देखें, आई कैन टेल यू दी रफ आइडिया, सो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यू नो कितना कितना होता है. So here I would like to talk about fiber also, then I will cover and I will tell you कि किस किस में कितना ग्राम होता है and how you can make your diet, okay, nutrition diet. What is fiber? फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर होता है, एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है. फाइबर ऑल्सो इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ योर डाइट बिकॉज फाइबर आपकी बॉडी में क्लीनिंग का काम करता है. जब भी आप खाना खाते हैं आपने देखा होगा कि जैसे एक प्लेट में आपने खाना खाया तो उसी प्लेट में आप दोबारा तो नहीं खा सकते, राइट? सो यू नीड टू क्लीन दैट प्लेट. सेम हियर हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना, डिटॉक्स होना ऑन अ डेली बेसिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सो फाइबर का जो काम होता है वो बॉडी में आपका जो एक्स्ट्रा जो फैट होता है, जो क्लींजिंग का प्रोसेस होता है वो सारा एब्जॉर्ब करके फ्लश आउट करता है. Dietary fibers again are the indigestible part of plant food such as vegetables, fruits and grains and legumes. Okay, so this again you need to keep a check on it that every day how much fiber you are taking because it is very very essential like your protein, fats and complex carbohydrate. So मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. It is again 100 ग्राम per serving. Okay, so oats में अगर आप देखेंगे 400 कैलोरीज आपको इसमें मिलेगा एंड 10.3 ग्राम ऑफ टोटल फाइबर मिलेगा जिसमें आपका 6.5 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर होगा एंड 8 ग्राम सॉल्युबल फाइबर होगा. इफ यू टॉक अबाउट सोयाबीन में अगेन दिस इज 100 ग्राम पर सर्विंग. सो सोयाबीन में यू विल गेट 15 ग्राम ऑफ टोटल फाइबर, 8.2 ग्राम जिसमें आपको इनसॉल्युबल फाइबर मिलेगा और 6.8 ग्राम आपको सॉल्युबल फाइबर मिलेगा. लेंटिल्स की अगर आप बात करेंगे तो सोयाबीन में आपको 376 कैलोरीज मिलेगी. श्योर हामिद जी, मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी. आप प्लीज जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप डालते रहिए और वी कैन हैव दी कॉन्वर्सेशन लाइक एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके, सो प्लीज if you want to ask anything you may go ahead and I would love to answer those questions. So lentil का हो गया 573 कैलोरीज एंड होल ग्रेन ब्रेड में आपको मिलेगा 252 कैलोरीज, 6 ग्राम ऑफ टोटल फाइबर जिसमें आपको मिलेगा 4.8 ग्राम आपको इनसॉल्युबल मिलेगा, 1.2 ग्राम आपको सॉल्युबल फाइबर मिलेगा. आलमंड्स में आपको 579 कैलोरीज रहेंगे, 11.2 ग्राम ऑफ टोटल फाइबर रहेगा जिसमें 10.1 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर रहेगा एंड 1.1 ग्राम सॉल्युबल फाइबर रहेगा. ओके, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द विटामिन्स एंड मिनरल्स विच इज अगेन इंपॉर्टेंट. आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स. So vitamin A and C, these are the two vitamins which are very important. विटामिन C का इंटेक लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज विटामिन C हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है. विटामिन C डेली बेसिस पे लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के द्वारा ना तो स्टोर किया जाता है ना ही प्रोड्यूस किया जाता है. विटामिन सी अगर आप लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी डेफिनेटली स्ट्रांग होने वाला है. इट इज गोइंग टू सपोर्ट इवन इफ यू, मैं एंड में डेफिनेटली बात करने वाली हूँ कि कोविड-19 से आप कैसे बच सकते हैं बिकॉज इट इज इन आवर हैंड एंड डेफिनेटली वी कैन गेट इट ऑफ दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल इफ वी वांट. सो विटामिन ए है वो स्किन के लिए बहुत हेल्प करता है, हमारे टिश्यूज के लिए एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो विटामिन ए एंड सी का इंटेक डेली बेसिस पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो विटामिन सी के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं दैट आई विल आल्सो टेल यू. सो डेफिनेटली जो मिनरल्स एंड विटामिन आते हैं वो इट कम्स इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको डेली बेसिस पे लेना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज it's a combination. I have told you that these are the two things which are really important in your diet. One is macro and micro. So minerals and vitamins are the part of micronutrients. तो ये आपको कॉम्बिनेशन में बनाना है जब भी आप कोई भी मील ले रहे हैं. ओके, now phytonutrients also called as phytochemicals जो definitely are the chemicals produced by plant. Phytonutrients again fruits, vegetables, different colors of vegetables, fruits जितना आप खा सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है. Nowadays जो फूड की वेजिटेबल्स की क्वालिटी है, फ्रूट्स की क्वालिटी है, उस पर भी हम बात करेंगे.
तो फिलहाल जितना ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं अपने खाने में उतना ऐड कीजिए. नाउ वाटर, यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट वाटर इज रियली इम्पॉर्टेंट? यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक that water is really important, because we all know that 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है. एंड कई बार हम हर चीज़ लेते हैं बट पानी अवॉइड कर देते हैं, और पानी कितना लेना चाहिए हमें वो भी नहीं पता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट. जितना भी हमारी बॉडी की गंदगी होती है वो पानी के थ्रू ही बाहर जाती है, और अगर इनफ मात्रा में आप डेली बेसिस पे पानी अपनी बॉडी में नहीं डालेंगे, क्योंकि बॉडी में से पानी डेली बेसिस पे निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, यू नो, यूरिन के थ्रू निकलता है. और अभी तो गर्मी भी आ गई है तो आपको स्वेटिंग भी होगा. फिर कभी कभी यू नो अगर हार्ट ब्रेक होता है तो आप रोते भी हैं, तो उसमें भी आपका पानी निकलता है बॉडी से. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नरिश योर बॉडी. And I always believe that you know, whenever you are hungry, it's an opportunity to nourish your body. So पानी का टेक केयर कीजिए. पानी हेड टू टो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में. हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है बॉडी को. So these are the things which you need to take care. Now we'll come on COVID-19. Okay, first of all, as I have spoken about दी इम्यूनिटी पार्ट. अभी इम्यूनिटी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिंपल भाषा में समझते हैं. जो भी हमारा पौष्टिक आहार होता है, ओके, खाने का, जिनसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, सिंपल भाषा में समझते हैं. प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज अगर आप ये करते हैं, ट्रस्ट में, आपको कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं. ओके, ये चीज़ें आपको देखनी है कि आपकी बॉडी में जो एक्सेस मात्रा में चीज़ें जा रही है वो नहीं जानी चाहिए. वो क्या है जो आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, ये श्योर आई वुड लव टू टेल यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि मैदा और शुगर से जो भी चीज़ें बनी हैं उनको अवॉइड करना है. आपका बर्गर हो गया, छोले भटूरे हो गए. छोले इज स्टिल ओके, इट हैज़ प्रोटीन. बीन्स एंड लेंटिल्स आर ऑलवेज गुड, एंड स्प्राउट्स एंड चिकपीज. या सो आपको मैदा और शुगर से बनी चीज़ें अवॉइड करना है. पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और जितनी भी तली भुनी जंक फूड है उनको आपको अवॉइड करना है. फिर आपको मार्केट में जो पैकेट्स आते हैं नमकीन के या कुरकुरे आते हैं, चिप्स आते हैं, वो चीज़ें अवॉइड करनी है, बिकॉज उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है. ओके, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा. कोल्ड ड्रिंक्स कंप्लीटली अवॉइड करनी है, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ शुगर इनटेक इन इट. आपको क्या क्या चीज़ें, जंक फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है. आपको क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है अपने खाने में. सबसे पहले ऐसे फ्रूट्स खाने हैं, और डेफिनेटली अभी समर्स हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं. मस्क मेलन हो गया, देन वाटरमेलन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, कीवी हो गया, फिर या यू कैन हैव बनाना ऑल्सो. बहुत सारे फ्रूट्स जिनमें वाटर इनटेक ज़्यादा होता है, आपको ऐसे फ्रूट्स का कंज्यूम करना है. वेजिटेबल्स आप जब भी खरीदेंगे, वेजिटेबल्स को विनेगर में और वार्म वाटर में और हल्के से सॉल्ट में आप उसको एटलीस्ट 15-20 मिनट्स भिगो के रखिए. उसके बाद उसको निकाल के उसकी सब्जी बनाइए. सो पहले एकदम ऐसी नॉर्मल पानी से धुल के सब्जी नहीं बनाना है. प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल सब्जियों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, एडल्ट्रेशन, केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं. अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो पहले में और अब के कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ को ड्रास्टिकली उन्होंने चेंज कर दिया है. हम कितना भी अवॉइड करें फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज हेल्थ में बने ही रहते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा जो टंग है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो हमें नहीं मिल पाता है, एंड देन वी टेंड टू गो फॉर जंक फूड. तो पहले अभी तो आप कंप्लीटली हाय डॉक्टर बुलन जी. या डेफिनेटली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सब्जियों का आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना है. ऐसे करके आपको वॉश करना है, और जब भी सब्जी बनाएंगे उसमें मिर्च मसाला कम डालिए. ओके, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि इफ़ यू सी, ऑयल होता है ना, हम लोग ऑयल कैसे बाहर जब यूज़ करते हैं, अपने हाथ में लेते हैं तो कैसे चिपचिप करता है. सेम ऑयल,
सेम मिर्ची, सेम धनिया, जो भी हम बाहर फील करते हैं ना वही अंदर जाके करता है। तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत तीखा खा लूँ तो मैं अपने टंग को तो सेटिस्फाई कर लूंगा, बट बॉडी में जाके आपकी बॉडी को वो कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे टॉर्चर कर रहा है, वो आपको नहीं पता है। तो जो भी चीजें आप बाहर देख रहे हैं वैसे ही अंदर होती हैं, तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा टेक केयर करना है। प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट स्टार्ट लविंग योर बॉडी। इट्स द ओनली प्लेस, ट्रस्ट मी, once your body is not okay, you are completely gone and you become burden on other people, and this is a fact. आज के टाइम में एक तो हॉस्पिटल्स इतने नहीं हैं, ऊपर से डॉक्टर्स बेचारे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से जितना भी कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। आई रिमेंबर, मैं थोड़ा सा भी मास्क लगा लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे स्वेटिंग होता है और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और मुझे जल्दी से उतारने का मन करता है। कैन यू इमेजिन अबाउट आवर डॉक्टर्स? आई मीन how hard work they are doing on every single day. Not only hard work, जो sufferings होती है वो उन्हीं को पता है, and they cannot even say no because they know it's their responsibility and it's high time, like it's a challenging time for all of us and they really need to help. तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और हम अपनी तरफ से जितना ट्राई कर सकते हैं बर्डन ना बनने का उतना आप कीजिए। घर पे ही रहिए और विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ऑरेंजेस हो गए, नींबू हो गया, नींबू पानी भी आप बना सकते हैं, ठंडी चीज़ें आप ले सकते हैं, बट ठंडी चीज़ों में ज़्यादा इंटेक ठंडा नहीं करना है बिकॉज टेम्परेचर जितना आप डेफिनेटली। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है, गट हेल्थ में आप प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं। प्रोबायोटिक की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक इज कर्ड। ओके, सो आप प्रोबायोटिक ले सकते हैं, प्रोबायोटिक से आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा। और जिनका गट हेल्थ अच्छा होता है उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, जिनका गट हेल्थ अच्छा होता है उनको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलता है। ओके, तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, अदरवाइज आई विल फॉरगेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मनीष जी इज हियर। हेलो मनीष जी, विनीत जी, डॉक्टर संदीप जी, ओंकार जी, अंकित जी, टीना, वेरी गुड मॉर्निंग टीना, राकेश जी, गुड मॉर्निंग अर्चना जी। या सो योर क्वेश्चन इज हामिद जी, नाउअडेज मेनी रेडीमेड फूड आइटम्स आर अवेलेबल। हाँ, तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाहर लेवल पे लगाती हैं। मेगा डोजेस जो लॉ होता है वो हर कंपनी फॉलो नहीं करती है। आपने देखा होगा मैगी का भी अभी लास्ट टाइम निकला था। बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स के मामले में वो लिख के देते हैं कि इतना आपको फाइबर मिलेगा, इतना प्रोटीन मिलेगा, बट एक्चुअल में वो नहीं होता है। अभी के टाइम में स्पेशली जो कोविड-19 चल रहा है, इसके टाइम में मैं आपको रिकमेंड करूंगी बाहर से जितना फूड आइटम हो वो अवॉइड कीजिए, स्पेशली स्टोरेज जो होता है, और क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज करे जाते हैं। आपको भी पता है जो हम घर में बनाते हैं प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं दोस आर एक्चुअली नॉट गुड। तो घर पे जितना हो सकता है आप नॉर्मल खाना बनाइए, नॉर्मल खाना ही खाइए, और जो प्रोटीन के, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट के जो मैंने सोर्सेज बताए हैं उनको कंप्लीट कॉम्बिनेशन में आप लीजिए, यू विल बी कम्प्लीटली हेल्दी। एंड बाहर का क्या, आई मीन मिल्क भी, अगर आपका डेयरी का मिल्क मिलता है देन जस्ट गो फॉर डेयरी मिल्क। आई मीन नॉर्मल जो फूड पैकेट्स, मिल्क के पैकेट्स आते हैं उनको भी आप अवॉइड कीजिए। एंड द बेस्ट मिल्क आई वुड रिकमेंड यू स्टार्ट हैविंग सोया मिल्क। इट हैज वेरी गुड प्रोटीन, इट हैज वेरी गुड प्रोटीन। आई एम सो सॉरी फ्रेंड बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन। ओके, सो बाहर का जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए, घर में जो नॉर्मल फूड है वही खाइए। गर्म पानी का इंटेक बहुत कीजिए। अगर आपके पास ग्रीन टी अवेलेबल है या एनी डिटॉक्स ड्रिंक अवेलेबल है, मैं आपको 2-3 डिटॉक्स ड्रिंक बता सकती हूँ कि आप कैसे घर पे बना सकते हैं। इट विल रियली हेल्प यू टू डिटॉक्स योर बॉडी। एक चीज और आप सबको ध्यान रखनी है, अगर आप डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप ओवरवेट नहीं होंगे, आपका अंदर से बॉडी इंटरनल हेल्थ आपकी मेंटेन रहेगी, आप ओवरवेट नहीं होंगे, आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जो अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल वो आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बाई चांस अगर आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर भी रहे हैं जहाँ पे आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, एग्जाम्पल थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बहुत सारी ऐसी इशू चीज़ें हैं जिनमें आपको पर्टिकुलरली मेडिसिन लेनी ही पड़ती है और लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है बिकॉज उसका कोई कहते हैं कि इलाज नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी एज पर माई एक्सपीरियंस दैट कोई भी चीज़
अगर आपको हो रही है तो डेफिनेटली डिसबैलेंस के थ्रू हो रही है, आपके हार्मोनल अगर चीज़ें भी ठीक नहीं चल रही हैं, हार्मोन्स भी एक्यूरेट मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं काम कर रहे हैं, जो मेन रीज़न होता है वो आपका न्यूट्रिशन होता है। सारी चीज़ें अगर आप एक्यूरेट मात्रा में ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप कभी भी बीमार पड़ेंगे। इट्स बीन मोर देन 5 years, आई हैव नेवर सीन अ डॉक्टर, ओके, लाइक 5 years से 5 years अगो माई हेल्थ वॉज हॉरिबल। तो मैं जब अपना टेक केयर कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और ये जो मेरा वेट है, जो मैंने अपना हेल्थ मेंटेन किया है पिछले 5 साल से कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है टंग में, थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है डाइट का, और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी जरूरी है, बिकॉज बॉडी मूवमेंट भी होना जरूरी है। बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत चीज़ों के थ्रू होता है। डिटॉक्सिफिकेशन बताती हूँ किस चीज़ों के थ्रू होता है। आपका स्वेटिंग के थ्रू होता है, पिंपल्स के थ्रू होता है, लूज मोशंस के थ्रू होता है, वॉमिटिंग के थ्रू होता है, रैशेस के थ्रू होता है। ये सारी चीज़ों के थ्रू आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। सम टाइम लाइक इफ यू आर हैविंग लॉट ऑफ वाटर, इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, आपने देखा होगा आपको पिंपल्स आ जाते हैं, या आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं या डिटॉक्स की ड्रिंक ले रहे हैं तो आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। सो दिस इज अ सिम्टम और दिस इज अ साइन दैट योर बॉडी इज ऑन डिटॉक्सिफिकेशन मोड एंड योर बॉडी इज डिटॉक्सिंग थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, ओके। सो ये चीज़ें ऐड कीजिए और आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू ऑल विल बी हेल्दी एंड फिट। एंड या घर पे रह के अगर इन चीज़ों का ध्यान कर सकते हैं, इम्यूनिटी प्लीज 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 बढ़ाइए। 3 तरह के लोग देखे गए हैं अभी कोविड-19 में। 3 तरह के लोग देखे गए कोविड-19 में। एक वो इंसान है जिनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, ओके, उनको एकदम से सीवियर आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे, ओके। एक है जिनका मीडियम है, उनको मतलब दिखते हैं बट इतने मेजर उस पर नहीं दिखते हैं, मतलब जल्दी ठीक हो जाते हैं या थोड़ा बहुत दिखने स्टार्ट होते हैं, बट इम्यूनिटी की वजह से वो रिकवर जल्दी हो जाते हैं। एक लोग हैं जिनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है। इफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द दिल्ली थिंग, जो उन्होंने बोला था अरविंद केजरीवाल जी ने, कि देयर वर 15 पीपल जिनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, ना उनको खांसी थी, ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, ना उनको फीवर था, कुछ भी उनके सिम्टम्स नहीं थे, फिर भी वो लोग कोरोना पॉजिटिव थे, ओके। सो जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनके सिम्टम्स दिखते नहीं आते हैं, बट दे माइट बी पॉजिटिव लेटर ऑन, एंड वो थोड़ा बहुत भी अगर 1% भी पॉजिटिव है उनके अंदर तो वो और लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप कभी भी बाहर से आ रहे हैं, सब्जियों का जो मैंने बता दिया, प्लीज उसका सब्जियों का बहुत ध्यान रखिए। कोई भी चीज बाहर से आ रही है, या तो आप उसे तुरंत धुल लें या सैनिटाइज हाथों को करें, उसको भी सैनिटाइज कर दें और तुरंत उस चीज को गर्म कर लें, तो ऐसे ही वायरस मर जाएगा, ओके। और अगर आप इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो बेसिक जो मेडिकेशन है लाइक पैरासीटामोल एंड दैट टू मोर टैबलेट्स विच आई एम कीपिंग विद माई सेल्फ। तो अगर हैवी इनिशियल डेज में तो हैव लॉट ऑफ डिटॉक्स ड्रिंक, हैव लॉट ऑफ हॉट वाटर, खाना अच्छा कीजिए। अगर वायरस हो भी गया होगा, इन्फेक्टेड हो भी होगा, तब भी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगा। बट अगर आप टेक केयर नहीं करते हो एंड देन यू आर हाइडिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम योर सेल्फ, कि नहीं आई एम ओके, थोड़ा सा ही है, तो वो कब बढ़ जाएगा, कब आप लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, वो पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अगर हम सब ने ट्राई किया ऐसा, तो एक्चुअली हम डॉक्टर्स को और इंडिया को बहुत हेल्प कर पाएंगे बाय सेविंग आवरसेल्फ एंड अदर पीपल, ओके। Okay, Hamid ji, your second question is, it is said that water shouldn't be drunk just after meal or during the meal. Okay, so एक चीज़ मैं और आपको टिप्स देती हूँ। फाइबर इंटेक जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट जो होती है उसमें गुड फाइबर इंटेक होता है। सॉफ्ट बहुत अच्छा काम करती है। खाने से पहले यू नो मे बी 10-15 मिनट्स बिफोर 1 चम्मच सॉफ्ट का लीजिए, उसको अच्छे से चबाइए, उसके ऊपर 1 गिलास पानी पीजिए, ओके। एंड आफ्टर दैट मैं ये बहुत मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जो अच्छा दिखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा खाते हैं तो आपके फेस पे, आपके बालों में, आपकी बॉडी में वो दिख के आता है, और अगर आप अच्छा नहीं खाते हैं तो वो भी आपके फेस पे दिख के आता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि हाउ हेल्दी यू आर एंड हाउ गुड यू वांट टू लुक यू। तो आपको 1 चम्मच सौंफ लेना है, उसके ऊपर 1 गिलास पानी पीना है, और 10-15 मिनट खाने से पहले। और अगर आपके पास सैलड्स अवेलेबल है, लाइक गाजर अवेलेबल है, क्यूकम्बर अवेलेबल है, या एनीथिंग इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ सैलड, यू कैन हैव दैट बिफोर मील और अलॉन्ग विद द मील, बट बिफोर मील इज रिकमेंडेड, व्हाट आई रिकमेंड। तो उससे क्या होता है, जब आप खाना खाएंगे वो बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में डाइजेस्ट अच्छी तरह होगा। एंड क्या होता है, द ओनली आई वुड से, जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं
तो जब आप पानी पीते हैं तो पानी के साथ वो खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत करता है। सो खाने के तुरंत बाद डेफिनेटली पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के में भी हाफ एन आवर बाद यू कैन हैव 1 और 1.5 ग्लास ऑफ वाटर एंड धीरे धीरे आप पानी पीजिए। खाने के पहले पानी पीजिए ताकि जो आप खाना खा रहे हैं वो अच्छे से नीचे जा पाए और डाइजेस्ट हो पाए। ओके, सो इट रियली हेल्प्स फॉर वेट लॉस, ऑल्सो मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ऑल्सो गट हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्प करता है। सो दिस थिंग यू कैन टेक केयर। विनीत जी, बटर मिल्क रियली गुड फॉर हेल्थ, येस ऑफ कोर्स, एंड बटर मिल्क में भी अगेन प्रोटीन तो होता है बट बहुत कम मात्रा में होता है, बट खाने के साथ अगेन डाइजेशन अच्छा करता है वो। तो यू कैन हैव बटर मिल्क ऑलवेज, यू नो, अलॉन्ग विद योर मील, और मे बी आफ्टर मील यू कैन ऑल्सो हैव। मैम, व्हाट आर द फूड सप्लीमेंट्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द बॉडीज इम्यूनिटी? फूड सप्लीमेंट, सो आई तो टेक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, बट फूड सप्लीमेंट में जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन हैव कर्ड जो प्रोबायोटिक का काम करता है, यू कैन हैव मल्टीविटामिन, एंड अगेन आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू गो फॉर केमिकल बेस्ड, ट्राई टू गो फॉर यू नो plant based food. Okay, so वो again it gives you a good amount of most of the time what happens when you start taking chemicals or medicines, तो वो आपकी बॉडी वैसे ही अडॉप्ट करने लगती है। ओके, अडॉप्ट करने लगती है, एंड देन दैट बॉडी विल आस्क यू अगेन एंड अगेन, इवन इफ यू फॉल सिक, आपकी बॉडी केमिकल की तरफ भागेगी। तो जितना ज़्यादा मेडिसिन अवॉइड हो सकता है वो कीजिए। खाने के तौर पे अभी तो जो नॉर्मल, अभी वैसे भी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बोलूँगी तो शायद मार्केट में अभी अवेलेबिलिटी कम है, बट जो भी नॉर्मल खाना आप खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड, विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दीजिए, वार्म लाइक हॉट वाटर पीना स्टार्ट कर दीजिए, डिटॉक्स ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दीजिए, एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यू विल बी एब्सोल्युटली ओके, फिट एंड हेल्दी। एक्सरसाइज के बारे में अगर जानना है या आपको और न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन माई ID रिचा दीक्षित, मेरी प्रोफाइल भी है, एंड यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद मी ऑन माई पेज। So, yeah, is there any other question? Yes, नैना जी, जैसे मैंने अभी इसमें बताया था, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। सो बेसिकली जो मैंने बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जो फूड होते हैं, उसमें जो लाइक प्रोटीन का जो मैंने बताया था, वेज सोर्स भी होता है, नॉन वेज भी होता है, वो आपको एक तो प्रोटीन का इंटेक लेना है, वेज एंड नॉन वेज का। देन इट कम्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का आपको इंटेक ऐड करना है अपने खाने में। देन इट कम्स टू हेल्दी फैट्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। देन इट कम्स लाइक टू फाइबर में आपको इंक्रीज करना है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। मॉर्निंग में अगेन यू कैन हैव some detox drink along with the dry fruits, and healthy fats में you can also have chia seeds, and अगर आपको supplement में देखना है तो you can have fish oil also, उसमें भी omega 3 अच्छा intake होता है। So and also sleep and water is very important, ये भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत मैटर करता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है तो गट हेल्थ अच्छा कीजिए, गट हेल्थ अच्छा होगा तो देर आर 6-7 बेनिफिट्स जो मैंने बताए थे वो आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? मैंने अपना सेशन जल्दी खत्म कर दिया। आई होप आई वॉज क्लियर, लाउड, एंड यू नो द मैसेज वॉज गोइंग परफेक्टली, बिकॉज सम टाइम आई टॉक वेरी फास्ट एंड आई डोंट रियलाइज दैट यू नो एम आई गोइंग राइट और नॉट। अगर संदीप जी यहाँ पे हैं तो संदीप जी आप बताइए, वॉज इट ऑल राइट? आई मीन मैसेज प्रॉपर तरीके से गया है? Is there any other question, friends? So you can also get in touch with me on Instagram. My Instagram ID is richa dikshit 24. वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, एंड मेरा जो रिचा दीक्षित का पेज है वहाँ पे बहुत सारे मैं न्यूट्रिशन टिप्स देती रहती हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम अगेन वी कैन कम हियर एंड टॉक टू ऑल ऑफ यू इफ वी विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, एंड यस आई एम प्लीज, अगर आप प्लीज अभी सबसे पहले आपको एक चीज चेक करनी है दोबारा से, प्लीज चेक वेदर यू आर ओवरवेट और अंडरवेट। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ, अगर आपको अपना वेट चेक करना है, आपका जो भी हाइट है, ओके, सो लड़कों का अगर हाइट है एग्जाम्पल 163 सेंटीमीटर, तो लड़कों की हाइट में से आपको 100 माइनस करना है,
और जो भी रिमेनिंग होता है दैट शुड बी योर वेट. सो एग्जाम्पल, अगर आप 100 माइनस करेंगे तो 63 आपका वेट होना चाहिए. ठीक है, 63 kg. लड़कियों का आपको 105 माइनस करना है टोटल सेंटीमीटर में से. सो एग्जाम्पल, माई वेट इज 155, माई हाइट इज 155 सेंटीमीटर. तो उसमें से आप 105 को माइनस कर दीजिए. कितना बचा? 50. तो माई वेट शुड बी 50. ऐसे करके आपको वेट देखना है. ओके, सो टोटल वेट माइनस योर बॉडी फैट कम्स योर लीन मसल मास. उतना आपका मसल मास होना चाहिए. और मसल मास को इंक्रीज करने के लिए अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन का इंटेक अच्छे से कीजिए. प्रोटीन के सोर्सेज मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं. इफ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, do get in touch with me and let me know if you need any help, any guidance. I am always there. Thank you so much for being there. It was lovely meeting you all and connecting with you all. And I hope आप प्लीज़ सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. कोविड-19 से फाइट करने के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा. और या एक्सरसाइज भी धीरे धीरे आप पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे कर सकते हैं. और एक्सरसाइज, ऑलवेज रिमेंबर 70% न्यूट्रिशन एंड 30% एक्सरसाइज वर्क्स. सो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं और न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. बट अगर आप न्यूट्रिशन डाइट अपनी फॉलो प्रॉपरली कर रहे हैं और एक्सरसाइज इतना नहीं कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो यू विल स्टिल बी हेल्दी. सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन डाइट. So it was lovely talking to you all. Thank you so much for connecting, and have a great day ahead. And God bless you all. Keep smiling and yeah, enjoy with your loved ones. Thank you for joining me here. Bye bye.